Okay, good afternoon, everyone. Before Diwali, we have completed the normalization normal forms. Today, we are going to start the next unit, that is security. We have three units are remaining: security, query optimization, and PLSQL. All these three units are very small, so we can cover it within 1.5 hour, maybe 1 hour. So let's start from security. Then after we will go for the query optimization, and then or maybe PLSQL. So I request all of you join the session on time, so you will not miss any content. I hope screen is visible. Is it? Yes, sir. Okay, thank you. Bye. Okay, next unit is the database security. As you know, what is the importance of security? So whenever we are having any database, at that time your data must be secure. Otherwise, your data may be leak. अगर आपका डेटा लीक हो गया तो आपकी इंफॉर्मेशन सबके पास चली जाएगी और मिसयूज हो सकता है. तो डेटाबेस सिक्योर होना चाहिए. जैसे आपको पता है कि आपने कहीं पे भी रजिस्टर किया है, जैसे आप मॉल में जाते हो या फिर कुछ सिनेमाज में जाते हो, पेट्रोल पंप पे, वहां पे एक चीट में आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि लकी ड्रॉ विनर है या वॉट, तो वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके डेटाबेस में स्टोर करके आपकी इंफॉर्मेशन का मिस यूज भी कर सकते हैं, और कहीं और जगह भी ऐसे यूज कर सकते हैं. इट शुड बी अ सिक्योर, वो नहीं होना चाहिए. तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं ऐसी चीज की, फालतू की चीज जो होती है वहां पे हम नहीं देते. जहाँ पे जरूरी है वहां पे हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं. अगर वहां से भी इंफॉर्मेशन वो बिक गई तो then we cannot do anything. But database security must be there. So we will see the security, integrity, authentication, authorization, data encryption, access control, intrusion detection system. These all are the topics of this unit. One more additional topic, that is SQL injection, we will introduce. So first of all, security, it means users are doing what type of activity, he has rights, privileges or not. That everything we should check. So in a security, we need to check whatever activity is done by that user, whether that user is allowed to do or not. That we need to check. So we can say that prevention of data corruption, data leakage. So we can control the database access by providing some security. For that, we use the many type of authentication, authorization, encryptions to provide the high security. Based on simple example, in our mobile phone, we are giving the security at the lock screen, then gallery, WhatsApp, email, everywhere. So that is the one smallest example of security. Authentication. अगर आप ऑथोराइज्ड यूजर है, फर्स्ट it will ask your username and password, either face lock, pattern lock, whatever, fingerprint or whatever. अगर आप सही यूजर हो तो ही आपको वो अलाउ करेगा. अलाउ करने के बाद भी आपको सब परमिशन नहीं दी है एक्सेस करने की, कुछ परमिशन दी है, कुछ परमिशन डिनाइड की है, तो वो ऑथोराइजेशन हो गया. So that is the security, basic fundamental of security. Integrity, it means that the things the user are trying to do are correct or not. So whether user is doing one activity, it is right or not, wrong.
So already we have seen the integrity constraint, check constraint, not null constraint, primary key from foreign key. So let me give you one best example, check constraint. अगर हमने चेक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट अप्लाई किया है तो आप वो कंडीशन सेटिस्फाई तो ही आपको डेटा इंसर्ट करने दे रहा है, अदरवाइज इट विल डिनाई. सो सिमिलर वे वी कैन से दैट this is the integrity. This is the difference between security and integrity. Security ensures that things user are doing only what they are allowed to do, and integrity ensures that the things the user are trying to do are correct or not. In security, it deals with protection of data. Integrity, it deals with integrity of data. So already we have seen this integrity of data at the time of constraint in the unit number 2. Data security defines a prevention of data corruption through the use of control access mechanism. So कुछ कंट्रोल हमने कुछ पर्सन को दिया है, कुछ नहीं दिया है. जैसे कि कोई पीसी है, उसमें गेस्ट यूजर होता है, पर्टिकुलर एक यूजर होता है, एडमिन होता है. तो एडमिन के पास फुल राइट्स होते हैं, यूजर के पास कुछ और राइट्स होते हैं, गेस्ट के पास ऐसे कुछ राइट्स नहीं होते, सिर्फ एक्सेस ही करता है. ठीक है. In a data integrity defines the quality of data which guarantees the data is complete and has a all structure. वो चेक करेगा कि ये जो डेटा इंसर्ट कर रहा है वो उसकी क्वालिटी सेम है, वो कंडीशन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो ऑलरेडी इन प्रैक्टिकल 3 when we created the tables, at that time we have checked the integrity constraint one by one. सभी कंस्ट्रेंट हमने चेक किए थे. So no need to repeat that thing. Authentication, authorization, encryption are means of security, and integrity, backup, error detection, error correction, that is the data integrity. Next is the database security. So whatever we have discussed, that points are written here. So in a database management system, it provides the protection to illegal activity. Security means it provides the protection against the malicious threats, illegal activity from the unauthorized user. So we can say that database security is planned and implemented and maintained by a DBA. So when we have seen the unit number 1 introduction, at that time we have seen role of DBA. At that time database security point was mentioned. Now you can identify that how DBA can plan and implement the database security for the database DBA, any database. For example, in any company, we have collected the customers' data. So we have a large number of data in terms of number of rows, in terms of number of columns. In that, maybe some data are sensitive and private, which leads to subject to strict privacy agreement. अगर वो डेटा हमने किसी को बेच दिया, लाइक फोन नंबर, एड्रेस, व्हाटएवर, तो वो इलीगल हुआ. उसको स्टॉप करने के लिए वी नीड टू गिव सम सिक्योरिटी in terms of that database. So for that we can set some privileges, we can give some grants. So we will see that thing also. So by applying some tools, some methods, we can stop this thing. So again, same thing. Secrecy, that is secret. So information should not be disclosed to unauthorized user.
नॉट ऑथोराइज्ड यूजर। ऑथोराइज्ड को तो पता ही होना चाहिए, अनऑथोराइज्ड को नहीं पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ग्रेड कैन नॉट टू एग्जामिन बाय स्टूडेंट्स। मैंने आपके पेपर में क्वेश्चन 1 में 5 मार्क्स दिए और दूसरे को 3 मार्क्स दिए सेम आंसर के, तो वो सीक्रेट होना चाहिए। अगर वो हो गया तो आप फिर कंपैरिजन करेंगे। एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, जैसे इम्प्लीमेंट रियल लाइफ में नहीं होता है। तो आप कंपैरिजन करेंगे, सर इसको आपने 5 दिए, इस मुझे आपने 3 दिए, तो वो उस केस में सिक्योरिटी जरूरी है। इंटीग्रिटी इट मीन्स ओनली ऑथोराइज्ड यूजर मॉडिफाई द डेटा। ओनली ऑथोराइज्ड यूजर। ऑथोराइज्ड यूजर कैसे हम चेक करेंगे? उसका यूजर नेम है, पासवर्ड और कोड वर्ड पूछेंगे। अगर वो मैच हो गया तो ऑथोराइज्ड पर्सन है, तो वो हिस्ट्री चेक कर सकता है पूरी, कि किसको कितने मार्क्स क्वेश्चंस में दिए हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी मींस ऑथोराइज्ड यूजर यूजेस शुड नॉट बी डिनाइड एक्सेस। जो ऑथोराइज्ड यूजर है उसको वो परमिशन चेंज करने की राइट्स है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। वो काम बीबीए करेगा। So for that we need to understand authorization and authentication. Authorization and authentication. So it's a very simple. Authentication, it means whether the user are who they claim to be. It means आप जो यूजर हो, जिसके लिए क्लेम कर रहे हैं वही यूजर हो, तो आपको परमिशन एंटर करने की मिलेगी, अदरवाइज इट विल डिनाई। तो हम बोल सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड। So authentication verifies the user credential. अगर वो आप नहीं है तो sometimes after few reattempts it will lock, जैसे ओरेकल में हो रहा है कि आप मिनिमम 8 to 10 टाइम्स अटेम्प्ट कर रहे हैं रॉन्ग पासवर्ड, तो वो चेंज होता है। बैंक में 3 अटेम्प्ट होते हैं, तो वो एक वन टाइप सिक्योरिटी होगी। 3 अटेम्प्ट के बाद आपको बैंक में जाके फिर से वो यूजर नेम पासवर्ड लेना पड़ेगा। एंड ऑथोराइजेशन का मतलब क्या? इट डिटरमाइंस व्हाट यूजर्स कैन एंड कैन नॉट एक्सेस। इतना ही याद रखो। ऑथोराइजेशन इट मींस आफ्टर ऑथेंटिकेशन, कि वेदर दिस पर्सन इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट। अगर ये पर्सन जो जिसने हमने परमिशन दी है वही है, तो उसके बाद का स्टेप उसको कितना एक्सेस मिलना चाहिए, कितना एक्सेस नहीं मिलना चाहिए, that is privileges. So check the privileges of a user before providing the access. So authorization validates user permission, authentication verifies user credential. This is the difference, authentication and authorization. In terms of difference, it is written here. So whatever we have discussed, that thing is mentioned here. Last point, authentication determines whether the person is user or not, and while it determines what permission do user have. Best example, suppose आपका मोबाइल है, तो हम पहले लॉक स्क्रीन जो है उसमें पैटर्न लगाएंगे। अगर आपका ही मोबाइल है तो आप ऑथेंटिकेटेड पर्सन हो। अगर मैं ट्राई करूं तो आई एम नॉट ऑथेंटिकेटेड पर्सन, तो मुझे डिनाई कर देगा। ठीक है। उसके बाद सपोज मुझे आपकी पैटर्न पता है तो मैंने कर दिया, उसके बाद गैलरी व्हाट्सएप सब में आपने लॉक लगाया है कि इसमें इसकी परमिशन ये यूजर को नहीं है, तो वो ऑथोराइजेशन होगी। सपोज आपने व्हाट्सएप मेरे साथ शेयर किया व्हाट्सएप का पासवर्ड, तो मैं व्हाट्सएप ही एक्सेस कर पाऊंगा, गैलरी आपकी एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। तो what permission you have given to me, that is authorization. Okay. Next, one small topic, but not important, benefits of audit trail. In audit trail, name suggests its meaning audit. So technical mechanism that helps manager to maintain the individual records. So एक person जो ट्रैक करेगा सब कुछ, कौन पर्सन, कौन यूजर लॉगिन हुआ, ऑथेंटिकेटेड है, वो क्या यूज करता है, एक्टिविटी क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो सब कुछ ऑडिट होगा।
अगर उसको सस्पिशियस लगा कि ये बंदा सही नहीं है, he or she is trying to करप्ट दी सिस्टम, तो वो डीबीए को इन्फॉर्म करके इसको ब्लॉक करवा देगा. दैट इज द ऑडिट ट्रेल, नथिंग एल्स. Intrusion detection. So intrusion detection refers to the process of identifying attempts to penetrate a system and gain unauthorized access. Simple. जो भी बंदा, जो भी पर्सन जिसको परमिशन ही नहीं है, ऑथेंटिकेटेड पर्सन ही नहीं है, वो ट्राई कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है इसमें उसको एक्सेस करने की, तो उसको इंट्रूजन बोलेंगे. इंट्रूजन डिटेक्ट करना बोलेंगे वो प्रोसीजर को, उसको इंट्रूजन बोलेंगे. तो इफ ऑडिट ट्रेल्स हैव बीन डिजाइन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू रिकॉर्ड एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन, दे कैन असिस्ट इन इंट्रूजन डिटेक्शन. क्योंकि ऑथेंटिकेटेड पर्सन की लिस्ट पूरी ऑडिट ट्रेल में है ही, उसके साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वेदर दैट पर्सन इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट. अगर नहीं है तो वो सस्पिशियस लगा, तो उसको हम इंट्रूजन बोल सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें हार्म कर सकता है, ये हमारी सिस्टम को, डेटाबेस को हार्म कर सकता है. दैट इज द इंट्रूजन डिटेक्शन. सो ये सब चीज ऑडिट ट्रेल में मेजर होती है. नेक्स्ट, डिटेल इनसाइट. तो पूरा जो लॉग होता है उसको ट्रैक करते हैं, कितने टाइम से, फ्रीक्वेंटली, कितनी बार वो यूजर एक डॉक्यूमेंट एक्सेस कर रहा है. अगर मुझे ऐसा लगा कि ये स्टूडेंट्स ने 15 बार 20 मिनट में एक ही डॉक्यूमेंट ओपन किया है, उसका मतलब उसको कुछ करप्ट करना है या फिर उसमें से कुछ डेटा उसको चोरी करना है. तो वो ऑडिट ट्रेल में सब कुछ मेजर होता है, वो सब कुछ ऑब्जर्व होता है. उसके बाद वो हायर अथॉरिटी का डीबीए को बताता है कि ये इंट्रूजन डिटेक्ट हुआ है, वो ये एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी करना चाहता है, तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं. ये सिर्फ डिटेक्शन की बात है. अगर ये सब टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करें तो पूरा साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट हो जाता है, जो आपको हायर सेमेस्टर में आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे तो सिर्फ सिक्योरिटी. नाउ हाउ वी कैन प्रोवाइड द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी हम कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो जैसे हम मोबाइल में यूजर नेम, पासवर्ड, पैटर्न, फेस, फिंगरप्रिंट, वो सब कुछ लगाते हैं. लैपटॉप में यूजर नेम पासवर्ड लगाते हैं, ईमेल में, जीमेल में, सब कुछ में. ठीक है. सिमिलर वे, व्हेन वी ट्रांसमिट समथिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एट दैट टाइम वी शुड अप्लाई सम मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटी. जैसे कि मैं यहाँ से आपको एक मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा हूँ, जैसे डालूंगा आप रीड कर लेंगे, तो हमें नहीं पता चलेगा वो एन्क्रिप्टेड है और नहीं है. तो अगर बीच में से कोई इंट्रूडर जो होगा, हैकर होगा, वो हमारा डेटा इलीगल वे में एक्सेस करके, डेटा चोरी करके वो कुछ कर सकता है. सपोज मैंने आपको एक मैसेज भेजा कि आज 5 बजे आपकी टेस्ट है. आपके यहाँ मैसेज पहुंचे उससे पहले किसी और ने उसको मॉडिफाई कर दिया कि नेक्स्ट वीक में 5 बजे आपकी टेस्ट है. तो मिसकम्युनिकेशन हो गया, डेटा सिक्योर नहीं है. तो मैं को क्या करूंगा कि उसको एनक्रिप्ट कर दूंगा, फिर ट्रांसमिट करूंगा, ताकि वो इंट्रूडर जो हैकर है उसको पता ही नहीं चले. सो दिस इज द मेथड which is known as the encryption. So encryption is a security method in which information is encoded in a such a way that only authorized user can read the data. Only authorized user can understand that encoded message. So DBA will provide some encryption keys like secret key, private key, or whatever. One more thing, this is the basic and fundamental concept, data encryption. In a detail, you will learn this subject INS in higher semester in a detail. So
Encryption is performed at the transmitting end. After encoded that data, we need to decrypt that data at the receiving end. मैं यहाँ पे एनकोड करके आपको भेज दूंगा, फिर आपको वो मैसेज रीड करने के लिए उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा. सो आपको डिक्रिप्शन की चाहिए होगी. सो without that decryption key, intruder cannot break and ciphertext to plaintext. Now what is ciphertext and plaintext? That is a part of cryptography. We will see what is ciphertext and plaintext in the next slide, so don't worry. Let's understand some terminology of encryption. Plain text, that is our plain simple message, our readable data message. वो हम plain text को encryption algorithm में input करेंगे. encryption algorithm उसको ट्रांसफॉर्म करेगा एनकोडेड मैसेज में, और जो मैसेज बनेगा उसको साइफर टेक्स्ट बोलेंगे. साइफर टेक्स्ट बोलेंगे. वो स्क्रैम्बल्ड मैसेज बेस्ड ऑन एनक्रिप्शन एल्गोरिथम. देयर आर लॉट्स ऑफ एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, बहुत सारे एल्गोरिथम है. यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है वो डिटेल में नहीं है, तो वो सारे एल्गोरिथम्स आपको हायर सेमेस्टर में मिलेंगे. अभी एक दो मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करूंगा. सो वो जो मैसेज है साइफर टेक्स्ट, वो फिर ट्रांसमिट होगा एट दी रिसीवर साइड. मीन्स आपकी साइड आप क्या करेंगे, वो साइफर टेक्स्ट रीड करने की ट्राई करेंगे, लेकिन आप रीड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन से एल्गोरिथम से मैंने एनकोड किया है. तो आपको वो कीज चाहिए होगी. तो दैट इज नॉन एज द पब्लिक की एंड प्राइवेट की. अकॉर्डिंग टू दैट की यू विल डिकोड दैट साइफर टेक्स्ट इनटू अगेन प्लेन टेक्स्ट. अगर वो प्लेन टेक्स्ट में सक्सेसफुली message आपको मिल गया, then you can read that thing. So that is known as the decryption algorithm. So there are mainly two keys, public key and private key. Name suggests its meaning. If one is used for encryption, the other is used for decryption, and if same key is used by everyone, then that is known as the public key. And if you want to decrypt that message individually, you can use the private key. So sender need to send the private key to you, so you can decrypt that message. For that we have two keys, two types of keys, symmetric key and asymmetric key. Symmetric means whatever key we are using, that decryption key will be same at both end, at receiver side and at sender side. So by using a symmetric key, fast encryption and decryption is possible for routine use with sensitive data, and it can be decrypted only with the same secret key which is used in the encryption. जिस की से मैंने एनक्रिप्ट किया, एनकोड किया, वही की से डिकोड होता है, तो उसको सिमेट्रिक की बोलेंगे. क्लियर? लाइक दिस एग्जांपल इज वन पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन. ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है, उसमें सपोज लिखा है हेलो एवरीवन गुड आफ्टरनून. उसको हमने एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लाइक डीएस, एईएस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब एल्गोरिथम है, उससे हमने इधर सीक्रेट की और प्राइवेट की और पब्लिक की सिमेट्रिक की से लॉक कर दिया, फिर ट्रांसफर किया साइफर टेक्स्ट को रिसीवर साइड, उसको डिक्रिप्ट करेंगे डिक्रिप्शन एल्गोरिथम से, फिर हमें प्लेन टेक्स्ट मिलेगा, ताकि इन बिटवीन दिस ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रूडर और व्हाटएवर हैकर वो इसको रीड नहीं कर पाए. ठीक है. हाँ, कुछ लेवल्स ऐसे है रीड कर पाएंगे, तो वहां पे हमें सिक्योरिटी ऐसी ही बिठानी है कि वो उसको इजीली पता नहीं चले. ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं दूंगा, आपको पता चल जाएगा. Second one is the public key encryption algorithm, which use the pair of keys 1
of which is a secret key and one is public key. So mathematically, these two keys are linked with each other. These two keys can have profound consequences in areas of confidentiality, key distribution, and authentication. कॉन्फिडेंशियलिटी या वो आपको पता है कि जो जिसके पास कॉन्फिडेंट डेटा होता है उसको ही हम की डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर चेक करेंगे वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसको हम वो नहीं देंगे। जैसे कुरियर कुछ बैंक से आता है, यूजर नेम पासवर्ड एटीएम, तो वो जिसके नाम का होता है उसको ही देते हैं, दूसरे को नहीं देते। सिमिलर वे, so two keys used for public key encryption are referred to as a public key and private key, two keys. Let's have some examples so you can get the idea. ये example encryption आपके टॉपिक में डेटा एनक्रिप्शन इतना ही लिखा है तो आपको यहाँ तक का समझ में आ गया, लेकिन ये जो एग्जांपल है वो आपको डिटेल समझ में आई, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फास्टली। ये आपको डिटेल में हायर सेमेस्टर में आएगा। अगर बाय चांस एग्जाम में पूछ लिए कि explain data encryption with one algorithm, then you can give one smallest example. That's why I am giving you this thing. So plain text is a view as a sequence of element, either bit in terms of character or bit. Substitution cipher, transposition cipher, and product cipher. These three are the main algorithm. In substitution cipher, it means name suggests its meaning. Substitute, we need to substitute something. So replacing each element of the plain text with another element. And a transposition, it means rearranging. Transposition, it means rearranging the order. उसमें कुछ रिप्लेस नहीं करेंगे, सिर्फ ऑर्डर रीअरेंज करेंगे, तो वो साइफर टेक्स्ट हो। आप बोलेंगे सर ऑर्डर चेंज करेंगे या फिर रिप्लेस करेंगे, तो हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि इसकी वजह ये होगा, इसकी वजह ये होगा, तो हम इजीली प्लेन टेक्स्ट एनकोडेड साइफर टेक्स्ट है उसको हम हैक कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं मैसेज। यस, दैट्स व्हाई वी नीड टू डेवलप सच एल्गोरिथम्स इन अ लेवल बाय लेवल। ये सब्स्टिट्यूशन ट्रांसपोजिशन ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए AES, DES, ट्रिपल DES वो हायर सेमेस्टर में आपको पता चला। प्रोडक्ट साइफर मींस यूजिंग मल्टीपल स्टेज ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन, ऊपर दो का कॉम्बिनेशन मल्टीपल स्टेज पे, तो वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कंपेयर टू दिस टू। नाउ सीजर साइफर, दिस वन इज द बेस्ट एंड इजीएस्ट सब्स्टिट्यूशन साइफर एग्जांपल। अगर एग्जाम में पूछे तो ये बेस्ट एग्जांपल है, दे देना सिंपल। सब्स्टिट्यूशन इट मींस रिप्लेस ईच लेटर बाय अनदर लेटर, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, रिप्लेस द लेटर बाय 3 पोजीशन फर्दर डाउन द अल्फाबेट। फॉर एग्जांपल ABCD लिखी है मैंने यहाँ पे ABCDEFG, तो फर्दर डाउन 3 पोजीशन, सो A है तो उससे A रिप्लेस किससे होगा, फर्दर डाउन 3 पोजीशन, इट मींस A रिप्लेस करना है तो B first, C second, and third position is D. So A replace with the D, B replace with E, C replace with F. तो यहाँ तो आपको एक पैटर्न पता चल गई, तो बाकी सब पूरा कोड मिल जाएगा कि ये कहाँ कैसे क्या लिखा है। सो इसलिए हमें सब्स्टिट्यूशन साइफर से मूव करना पड़ेगा और हायर सिक्योरिटी वाले एल्गोरिथम्स देखने पड़ेंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा है OHIO स्टेट, OIO स्टेट, इसमें O, so O से आप 3 रिप्लेस करो तो 1, 2 and 3, so O will be replaced with the R, so O is replaced with the R, H is replaced with the K, थर्ड पोजीशन, नेक्स्ट 3 पोजीशन रिप्लेस है। ये पोजीशन आप चेंज कर सकते हो, 3 की वजह 4, 2, 5, ठीक है। नेक्स्ट मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर। मोनो अल्फाबेटिक इट मींस वहां पे हमने थर्ड पोजीशन डाउन किया था, यहाँ पे मोनो अल्फाबेटिक में क्या है कि shuffle the letters and map each plain text letter to a different random ciphertext letter। वहां पे A को D से मैच किया था, फिर B ऑटोमेटिकली E से मैच हो रहा था, फर्दर 3 डाउन। यहाँ पे
इंडिविजुअल ए को डी से रिप्लेस किया, बी को के से, रेंडमली सी को वी से, डी को क्यू से, थर्ड पोजीशन नहीं और एनी सीक्वेंस नहीं, कोई भी सीक्वेंस नहीं, ए को डी से फिर जेड को एन से। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ वी विश टू रिप्लेस लेटर्स सो आई विल बी रिप्लेस। यहाँ पे आप देखो आई कैसे रिप्लेस हुआ है वो हमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखा, फॉन्ट साइज अलग है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो आई इज रिप्लेस विद द डबल ई, क्लियर? सो दिस वे वी कैन सब्स्टिट्यूट द प्लेन टेक्स्ट। सो ऐसे हम उसको एनकोड कर सकते हैं, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम लगा सकते हैं। दिस इज मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर एल्गोरिथम। नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन साइफर। ट्रांसपोजिशन इट मींस रीअरेंजिंग द लेटर्स, ऑल्सो इट इज नोन एज द परम्यूटेशन साइफर। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगल बनाएंगे, उसमें कॉलम वाइज कीज लिखेंगे। सपोज यहाँ पे की है 4 3 1 2 5 6 7 विच इज अवर की। हमारा प्लेन टेक्स्ट है अटैक पोस्टपोन्ड अंटिल समथिंग लिखा है, ये प्लेन टेक्स्ट। हम क्या करेंगे, प्लेन टेक्स्ट को ये बॉक्स में 1 बाय 1 लेटर लिखते जाएंगे। ये खत्म हो गया, की कितनी है, लेंथ किया है की 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम लिख लिए, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर फोर्थ रो। नाउ उसको हम प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे की वाइज जाएंगे। हम पहली पोजीशन पे फर्स्ट कॉलम कहाँ पे, ये फर्स्ट थर्ड कॉलम है, 1 number in key, 1 number is at third position, so we will read that column in a vertical manner, TTNA red color में लिखा है, so this is TTNA। फिर second APTM, फिर third TSUN O, फिर fourth AODW, फिर fifth, फिर sixth, फिर seven। so जो नंबर से उसके अकॉर्डिंग हम उसको वर्टिकली कॉलम रीड करते जाएंगे और उसको हॉरिजॉन्टली लिखेंगे। तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट हो गया, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट हो गया। बाय यूजिंग दिस की वी कैन रीड रो ट्रांसपोजिशन साइफर करके हमने उसको एनकोड कर दिया। क्लियर? इसको डिकोड करना है तो इसकी रिवर्स प्रोसीजर हमको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज द रिवर्स साइफर। रिवर्स साइफर में आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड, उसको रिवर्स में लिख दो तो वो रिवर्स साइफर हो गया, DERE लाइक दिस। ठीक है, उसको रिवर्स में लिख दो तो वो रिवर्स साइफर हो गया। नेक्स्ट रेल फेंस साइफर। रेल फेंस में डेप्थ आपको मालूम होनी चाहिए। सपोज प्लेन टेक्स्ट ये है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट यही है, आई केम, आई सो, आई कॉन्कर्ड, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कॉलम वाइज ही लिखेंगे। आई सी, पहले वाले एग्जांपल पे हमने रो वाइज लिखा था, यहाँ पे हम कॉलम वाइज लिखेंगे। आई सी, यहाँ पे डेप्थ 2 है इसलिए दो रो ही तक जाना है। फिर AMEISAWI कॉन्कर्ड, ठीक है, फिर लिखेंगे उसको हम रो वाइज IAESW। इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ दिस वन। यहाँ पे हमने क्या लिखा, रो वाइज लिखा और कॉलम वाइज रीड किया। यहाँ पे क्या किया, कॉलम वाइज लिखा और रो वाइज रीड किया। रेफरेंस में अगर डेप्थ आपकी ज्यादा है तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे 2 है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो कभी भी एक एग्जांपल पूछे तो आप कोई भी एग्जांपल लिख देना, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सेस कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी। सो access control name suggests its meaning. It is a security technique that regulates who and what can be accessed or what type of resources can be used by whom. इसको कितनी परमिशन को कितने प्रिविलेजेस मिलेंगे वो कंट्रोल करेंगे एक्सेस कंट्रोल से। So access control is basically identifying a person doing a specific job, authenticating them by looking at their identification, then giving that person only key to the door
और कंप्यूटर दैट दे नीड एक्सेस टू एंड नथिंग मोर। तो ये तो हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में पहले हम चेक करेंगे वेदर दैट यूजर इज ऑथेंटिकेटेड और नॉट। अगर वो ऑथेंटिकेटेड है तो उसको कितना एक्सेस होना चाहिए, दैट इज नोन एज द एक्सेस कंट्रोल। इन दिस वी हैव टू टाइप्स, discretionary access control and mandatory access control. Discretionary access control, that is known as the DAC, MAC and RBAC, role based access control. DAC means discretionary access control। याद रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे होता है, एक्सप्लेन DAC, MAC and RBAC। सो डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल के अंदर ग्रांटिंग एंड रिवोकिंग ऑफ प्रिविलेजेस, इसको इतनी ग्रांट मिलेगी, उसको इतने प्रिविलेजेस मिलेंगे। सपोज मैं आप यहाँ पे 70 स्टूडेंट्स है, 70 स्टूडेंट्स में मैं 5 को ही बोलूंगा कि आप मेरे लेक्चर में बोल सकते हो, तो उसको मैंने ग्रांट दी है। फिर उसकी ग्रांट में अगर वो कुछ न्यूसेंस ज्यादा करे तो वो मैं ग्रांट रिवोक भी कर सकता हूँ, वो मैं वापस ले सकता हूँ। फिर 3 स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे प्रिविलेजेस दिए कि वो चैट में टाइप कर सकते हैं, तो वो एक प्रिविलेजेस हुआ। ठीक है। सो owner of the object of specify which subject can access the object. Object means table and subject means users. Let's see grant and revoke syntax. So SQL support grant and revoke commands by using this syntax. Grant is the command, grant privilege on object to user into bracket with grant option. This is syntax to grant, to give the rights to specific user, and this is the command revoke. We can take back that privileges, that rights from that user. Revoke privileges on object from user, restrict or cascade. These two are the option. Whatever we have written in the square bracket, it is optional. So let's understand with this grant privileges कमांड लिस्ट। इट मींस कौन से प्रिविलेजेस दे रहे हैं हम, सिलेक्ट करने की, डिलीट करने की परमिशन दे रहे हैं, इंसर्ट करने की, अपडेट करने की, या फिर रेफरेंस यूज करने की प्रिविलेजेस हम दे रहे हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, आपके कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि आपको पता ही है कि मैं उसको मोबाइल दूंगा तो वो क्या करेगा, सब कुछ मैसेज डिलीट कर देंगे या फिर व्हाट्सएप में कुछ ना कुछ न्यूसेंस कर देंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको सिर्फ देखने की परमिशन देंगे, तो दैट इज सिलेक्ट। आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट है कि ये कुछ नहीं न्यूसेंस करेंगे, तो आप डिलीट, इंसर्ट, अपडेट के राइट्स उसको दे सकते हैं। ठीक है। देन ऑन ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट नेम इज टेबल नेम, कौन से टेबल पे आप उसको परमिशन देना चाहते हैं। ठीक है। टू ऑथराइजेशन आईडी लिस्ट पब्लिक इट मींस एवरीवन कैन मॉडिफाई, सबको। और ऑथराइजेशन आईडी लिस्ट इट मींस स्पेसिफिक यूजर, कि एक स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स, एक्स स्टूडेंट्स, वाई स्टूडेंट्स, जेड स्टूडेंट्स, उसको ही परमिशन मिलेंगे। पब्लिक देंगे तो सबको ये ग्रांट मिलेगी, सब एवरीवन कैन यूज दैट प्रिविलेजेस। आपने सिलेक्ट की परमिशन दी है तो पब्लिकली सब लोग देख सकते हैं। क्लियर। एंड ये रेफरेंसेस वो आपको पता है कि फॉरेन की इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के लिए यूज होता है। एक बार आपने ग्रांट दे दी, फिर आपको उससे वापस लेनी है, तो रिवोक, उसको रिवोक बोलेंगे। तो रिवोक ऑल प्रिविलेजेस ऑन स्टेट्स फ्रॉम जोन, उसका मतलब क्या हुआ, रिवोक ऑल, हमने सबकी परमिशन दी थी, इंसर्ट, डिलीट, सिलेक्ट, एवरी, तो उसको ऑल कीवर्ड लिखी। प्रिविलेजेस ऑन स्टेट्स नाम का टेबल है, फ्रॉम जोन इट मींस जॉन नाम के यूजर को हमने सब परमिशन दी थी स्टेट टेबल एक्सेस करने की। अभी हम वापस ले रहे हैं जॉन से स्टेट टेबल की परमिशन जो एक्सेस कर रहे हैं। सो दिस इज द सिमिलर सिंटेक्स, रिवोक, ग्रांट ऑप्शन, प्रिविलेजेस, कौन सा प्रिविलेजेस हम वापस ले रहे हैं, कौन सा दिया था वो वापस ले रहे हैं, ऑन ऑब्जेक्ट नेम, टेबल नेम फ्रॉम दैट पर्सन। Restrict option is given then
The command is not executed if any dependent rule exists. रिस्ट्रिक्ट का मतलब कि अगर हमने फॉरेन की यूज की है तो वो कोई कमांड डिपेंडेंट है तो वो रिस्ट्रिक्ट कीवर्ड से आप रिवोक नहीं कर सकते। एंड कैस्केड से क्या होगा, विल फोर्स टू रिवोक एनी डिपेंडेंट रूल, फोर्सफुली वो स्टॉप करके वो रूल रोल बैक कर देगा। सो दिस इज द ग्रांट एंड रिवोक। सो बाय यूजिंग ग्रांट एंड रिवोक वी कैन अप्लाई द security at our database table. Now, second type is mandatory access control. Second type is mandatory access control. In this, we have some object, we have some subjects and clearance level. It means आपका जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग आपको परमिशन मिलेगी। जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो तो आपको सारी इंफॉर्मेशन हम नहीं दे सकते, ठीक है, जितने लेक्चर्स और लैब की रिटर्निंग है वो आपको दे दें। मैं फैकल्टी हूँ तो मुझे कुछ राइट्स, कुछ इंफॉर्मेशन रहती है, लेकिन आई कैन नॉट शेयर टू यू। मुझे पता है कि इतना ये टर्म एंड ये सबमिशन, ये क्वेश्चन पेपर, ये आंसर आएगा, ठीक है, लेकिन वो मैं आपको नहीं दे सकता। मेरे ऊपर जो है सपोज एचओडी, तो एचओडी के पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो मुझे शेयर नहीं कर सकते। So there is one hierarchy. Based on the hierarchy or based on that clearance level, mandatory access control will work. So DBMS determines whether a given user can read or write the given object based on some rules. That rules we need to set. If any user clear that level, then they can access that rule. For that, let's understand 4 components. One is subject. It means users like accounts, programs. Object, it means relations, tuples, attribute, tables, views, schemas, and this thing. And clearance levels such as top secret, secret, confidential, and unclassified. ये 4 क्लियरेंस लेवल है। टॉप सीक्रेट, ये हायरार्की है, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एंड अनक्लासिफाइड। अकॉर्डिंग टू दिस आपको सिक्योरिटी लेवल पास करना पड़ेगा। एंड सिक्योरिटी लेवल में सेम ही 4 कैटेगरी है, टॉप सीक्रेट, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एंड अनक्लासिफाइड। बेस्ड ऑन दिस क्लास, आप कौन से क्लास में आ रहे हो, अकॉर्डिंग टू दैट क्लास आपको परमिशन मिलेगी। This mandatory access control is also known as the Bella-Padula rule. So sometimes they ask in exam Bella-Padula rule. So simply आपको ये लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्लियरेंस लेवल क्या है, ये क्या है वो, ठीक है। यहाँ पे 1-2 रूल लिखे हैं सिक्योरिटी प्रॉब्लम में। सब्जेक्ट एस, इट मीन सीक्रेट, विल रीड ऑब्जेक्ट ओ इफ क्लास ऑफ एस इज ग्रेटर देन क्लास ऑफ ओ। इट मीन्स जो एस है, सब्जेक्ट एस, जो यूजर एस है, वो ऑब्जेक्ट ओ को तभी रीड कर सकता है जब भी उसका क्लास, क्लियरेंस लेवल, उसका क्लास वो इससे ग्रेटर हो, ठीक है। सिमिलर वे वो राइट कब कर सकता है, वो लेस देन इक्वल्स टू ये क्लास ओ हो। सो बेस्ड ऑन दिस 4 कैटेगरी they can access this thing. Third category is role based access control. Name suggests इस मीनिंग जिसको जितना रोल दिया है वही रोल के हिसाब से उसको एक्सेस मिलेगा। सपोज मैंने आपको टेबल क्रिएट करने का टास्क दिया है, रोल दिया है, तो वो आप टेबल ही क्रिएट कर पाएंगे। आपको डिलीट करने का टास्क दिया है, रोल दिया है, तो आप डिलीट ही कर पाएंगे। सो इंडिविजुअल यूजर हैज असाइन्ड द एप्रोप्रिएट रोल्स, that is known as the role based access control. So these 3 are the access control: disciplinary access control, mandatory access control, and RBC, role based access control. So these points are nothing, whatever we have discussed, it is written in words.
Next is the intrusion detection system. Just 1 minute. Rest of thing we will see in our next lecture. IDS. If you have any query, you can ask me. In the next lecture, we will complete one topic, that is intrusion detection and SQL injection. It will take 5 to 10 minutes, and after that, we will start the new unit.